JK Limited furnish the following details of its manufacturing operation during 2013. ওকে, এবার দেওয়া আছে অ্যাভারেজ মান্থলি ডিমান্ড 3000 কেজি। তারপরে দেওয়া আছে কি অর্ডারিং কস্ট 400, ইনভেন্টরি ক্যারিং কস্ট 20%, তারপরে দেওয়া আছে কস্ট অফ মেটেরিয়াল 100, নর্মাল ইউসেজ 700, মিনিমাম বলেছিল কত কেজির এখানে মিনিমাম ইউসেজ দেওয়া নেই, এখানে দেওয়া একটু লিখে নিতে একটু। মিনিমাম ইউসেজ 500 কেজি। তো তোরা লিখবি, তোদের তো বইতে দেওয়াই আছে, ঠিক আছে। মিনিমাম ইউসেজ 500 কেজি, আর এদিকে দেওয়া আছে তোর ম্যাক্সিমাম ইউসেজ 1000 কেজি, আর এদিকে লিড টাইম দেওয়া আছে 4 to 6 উইক। এবার এখানে আমি বার করতে হয়েছে ম্যাক্সিমাম স্টক লেভেল অ্যান্ড মিনিমাম স্টক লেভেল। এবার আমরা অলরেডি কি করেছি, এখানে ফর্মুলাগুলো লিখে রেখেছি। কি ফর্মুলা লিখে রেখেছি? ম্যাক্সিমাম লেভেলের ফর্মুলা কি হচ্ছে, ঠিক আছে, মিনিমাম লেভেলের ফর্মুলা কি হচ্ছে, অ্যাভারেজ স্টক লেভেলের ফর্মুলা কি হচ্ছে, ঠিক আছে। এই ফর্মুলাগুলো আমি অলরেডি লিখে রেখেছি। এই ফর্মুলাগুলো আমি ইউজ করলেই হয়ে যাবে জিনিসটা, ঠিক আছে। তাহলে ফার্স্ট আমি কী করবো, ম্যাক্সিমাম স্টক লেভেলের ফর্মুলা কী হচ্ছে, ম্যাক্সিমাম স্টক লেভেলের ফর্মুলা হচ্ছে হলো রিঅর্ডার লেভেল বা অর্ডারিং লেভেল প্লাস রিঅর্ডার কোয়ান্টিটি। রিঅর্ডার কোয়ান্টিটির আর একটা নাম কি হচ্ছে অর্ডারিং কোয়ান্টিটি। অর্ডারিং কোয়ান্টিটির আর একটা নাম কি হচ্ছে রিঅর্ডার সাইজ। রিঅর্ডার সাইজের আরেকটা নাম কি হচ্ছে ইওকিউ। ক্লিয়ার? তাহলে এইগুলো হচ্ছে তোর ডিফারেন্ট নাম। তাহলে এই ফার্স্ট ম্যাক্সিমাম লেভেলের ফর্মুলা কী হচ্ছে, রিঅর্ডার লেভেল প্লাস অর্ডারিং লেভেল প্লাস ইওকিউ রিঅর্ডার কোয়ান্টিটি মাইনাস যখন আমি ম্যাক্সিমাম করছি, যখন আমি কি করছি ম্যাক্সিমাম করছি, তখন ফর্মুলাতে আসবে কি মিনিমাম ইউসেজ ইন্টু মিনিমাম ডেলিভারি পিরিয়ড বা রিঅর্ডার পিরিয়ড, ঠিক আছে। মিনিমাম ডেলিভারি পিরিয়ড অর রিঅর্ডার পিরিয়ড। তাহলে ফর্মুলা কী হলে গেল দাঁড়ালো, ফার্স্ট রিঅর্ডার লেভেল বা অর্ডারিং লেভেল প্লাস রিঅর্ডার কোয়ান্টিটি, ঠিক আছে, মাইনাস মানে হোল মাইনাস মিনিমাম ইউসেজ ইন্টু মিনিমাম ডেলিভারি পিরিয়ড। মিনিমাম ইউসেজ ইন্টু মিনিমাম ডেলিভারি পিরিয়ড। হোয়াট ইজ यूसेज? यूसेजर আরেকটা নাম হচ্ছে কনজাম্পশন। ওকে, ইউসেজ का और एक नाम क्या है कंजम्पशन। এখন এতক্ষণ বেঙ্গলিতে বলে বলে এমন হয়ে গেছিলো বেঙ্গলিতে বলছিলাম, আমার মাথায় আসলো না আমাকে হিন্দিতে রেকর্ডিং করতে হবে। तो मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। ओके डन। तो ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला। डिफरेंट और फॉर्मूलाज है, ठीक है। सब जगह पे एक ही वैसा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, कुछ जगह पे डिफरेंट फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है। इसका ही छोटा वाला वर्जन करके रखा गया रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। सेम फॉर्मूला बट छोटा कर दिया इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। और एक फॉर्मूला क्या है ईओक्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला। उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था तुम्हारा रीऑर्डर लेवल। कभी कभी क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है, उस केस में हम लोग को क्या करना होगा, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना होगा। एंड रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट होने वाला है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा रीऑर्डर लेवल निकल जाएगा। या फिर सेफ्टी स्टॉक के साथ क्या करोगे, एवरेज लीड टाइम या फिर एवरेज कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। एवरेज लीड टाइम और फिर एवरेज कंजम्पशन या फिर एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम और सेफ्टी पीरियड, ठीक है। ओके क्लियर? রেশিওর থেকে ডিফারেন্ট এটা, রেশিও আর একটু ইজি ব্যাপারটা। नेक्स्ट मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। ये सारा फॉर्मूला है तुम्हारा किस लिए, ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा है रीऑर्डर लेवल के लिए। तो रीऑर्डर लेवल भी चाहिए होगा कभी कभी, क्योंकि कभी कभी रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, तो मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए रीऑर्डर लेवल मेरे को चाहिए होगा। ओके नेक्स्ट वन मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला मिनिमम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होने वाले रीऑर्डर लेवल, ठीक है, मतलब ये सेम फॉर्मूला हो रहा है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर ईओक्यू नहीं आने वाला है, खाली रीऑर्डर लेवल आएगा माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम में क्या होने वाला है, मैक्सिमम में होने वाला है मिनिमम। क्लियर? रीऑर्डर में क्या होने वाला है मैक्सिमम, और मिनिमम में क्या होने वाला है एवरेज। याद रहेगा एवरेज या फिर नॉर्मल। नॉर्मल का और एक नाम क्या है एवरेज। ओके तो क्या क्या बोले और एक बार बताओ। फर्स्ट रीऑर्डर लेवल में क्या हो जाएगा
मैक्सिमम, मैक्सिमम में क्या हो जाएगा मिनिमम, एंड मिनिमम में क्या हो जाएगा एवरेज, ऐसे करके याद रखना। तो फर्स्ट रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या हो गया, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब कितना कंज्यूम हो रहा है इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हो गया। वही रीऑर्डर लेवल और ईओक्यू तो आ जाएगा, रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू आ जाएगा, माइनस जब मैक्सिमम कर रहे तो क्या हो जाएगा मिनिमम, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, एंड थर्ड केस में क्या हो जाएगा, जब मिनिमम कर रहे तो रीऑर्डर लेवल आ जाए, रीऑर्डर लेवल आ गया, ईओक्यू नहीं लेना है, माइनस क्या करोगे मैक्सिमम, जब मिनिमम हो रहा है तो नॉर्मल यूसेज कर लोगे, नॉर्मल यूसेज या फिर मतलब एवरेज यूसेज ये। और एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो मैक्सिमम निकाले और ये जो मिनिमम निकाले दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2। सर ईओक्यू ऑलरेडी हो गया, क्लियर। अब शुरू करें एक बार, तो हम लोग क्या करने वाले, ये वाला सम पे फिर वापस आने वाले। कौन सा वाला सम, ये वाला सम। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एवरेज मंथली डिमांड फॉर मटेरियल 3000 kg। यहां पे ये सारे इंफॉर्मेशन क्यों दिया बताओ तो, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या पता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर ईओक्यू माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम ये डिलीवरी पीरियड। अब यहाँ पे सोचो, रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में गिवन है, कहीं पे रीऑर्डर लेवल देख पा रहे हो, रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में कुछ रीऑर्डर लेवल बोल के कुछ दिया हुआ है नहीं, दैट मीन्स तुम्हारा रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है, रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है यहाँ पे नहीं गिवन है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में गिवन है नहीं है, जब रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मेरे को रीऑर्डर लेवल पहले निकालना पड़ेगा। ओके, रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, रीऑर्डर क्वांटिटी भी गिवन नहीं है, दैट मींस ईओक्यू करके निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, ये फॉर्म मैक्सिमम स्टॉक लेवल का पहले जस्ट देख लो, पहले उसके बाद करना, जस्ट देखो पहले अच्छे से स्क्रीन पे फोकस करना और देखो समझो, उसके बाद कॉपी करना। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मैक्सिमम जब कर रहे तो हम लोग मिनिमम लेंगे। ओके, मैक्सिमम जब कर रहे हैं हम लोग क्या लेंगे मिनिमम लेंगे। क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल नहीं पता, इसीलिए पहले रीऑर्डर लेवल वर्किंग नोट्स 1 पे निकाले। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। ओके, तो मैक्सिमम यूसेज यहाँ पे क्या है, देखो मैक्सिमम यूसेज क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम यूसेज। ओके, एंड मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड क्या है 4 या 6, बोलो 6। तो क्या करेंगे 1000 इंटू 6, तो 6000 निकल गया। तो फर्स्ट हम लोग को मिल गया रीऑर्डर लेवल, उसके बाद क्या चाहिए रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर ईओक्यू। तो फॉर्मूला अप्लाई किए, रूट अंडर 2 AOC। मेरे को ए पता है, कितना पता है, बोला है ए, बोला है तुम्हारा एवरेज मंथली डिमांड 3000 kg, तो मंथली मतलब मल्टीप्लाई बाई 12, तो 3000 इंटू 12 कितना होने वाला है 36,000। ओ कितना है 400, ओ 400 बैठा दिए, और सी कितना है और 20%, तो 100 के ऊपर 20% कर दिए। ओके क्लियर, तो रूट अंडर ये कर लिए, अब ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, दोनों को प्लस कर देंगे, माइनस मिनिमम यूसेज एंड मिनिमम डिलीवरी पीरियड। मिनिमम यूसेज कहाँ पे दिया हुआ है, देखो मिनिमम यूसेज कितना दिया हुआ है 500, एंड मिनिमम डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ है 4, तो 500 इंटू 4 कैलकुलेट कर दिए, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकल गया। रुक जाओ जस्ट देखो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकल गया। उसके बाद मेरे को निकालना पड़ेगा मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल ऑलरेडी निकाल लिए, अब नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल मतलब क्या हो गया एवरेज, यहाँ पे नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है, कितना नॉर्मल यूसेज 700, बट नॉर्मल डिलीवरी पीरियड नहीं दिया हुआ है, तो वो कैसे निकालेंगे, नॉर्मल मतलब एवरेज, तो 4 + 6 डिवाइड बाई 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5, तो नॉर्मल कितना हो गया तुम्हारा, नॉर्मल डिलीवरी पीरियड या फिर एवरेज 4 + 6 डिवाइड बाई 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 6000 से माइनस कर दिया, तो मिनिमम स्टॉक लेवल निकल गया। तो ये दोनों चीज़ करने दिया था। ओके क्लियर, समझ में आ गया, चलो
Okay, Puja Pipes Limited use about 75,000 valves per year, and usage is fairly constant at 6 to 50 valves per month. The valves cost 1.50 per unit when brought in large quantity, and the carrying cost is estimated to 20% of average inventory investment on annual basis. The cost of place an order and process the delivery rupees 18. It takes 45 days to deliver from the date of an order, and safety stock बोला है कितना है 3250 valves is desired. You are required to calculate the most economical order quantity and frequently order and reorder point, and the most economical order quantity if valves cost 4.50 instead of 1.50. So first calculate the most economic order quantity. तो फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर 2AOC. ओके, ए कितना है पूरा साल में, कितना लगता है 75,000 valves per year. ओके, पूजा पाइप्स यूजेस अबाउट 75,000 valves per year. तो ए हो गया तुम्हारा 75,000. नेक्स्ट, द प्रोसेसिंग ऑर्डर एंड ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्लेस एंड ऑर्डर एंड प्रोसेस द डिलीवरी रुपीज 18. तो 18 हो गया. एंड सी कितना है तुम्हारा? बोल रहा था सी तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री एनुअल बेसिस. तो कैरिंग कॉस्ट कितना है? 20% ऑफ किसके ऊपर होगा? 1.50 पर बल्ब का कॉस्ट है. तो 0.3, 75,000, 18, तो वाल्व्स निकल गया कितना? 3,000. पहला वाला हो गया यो क्यू. नेक्स्ट, फ्रिक्वेंटली ऑफ ऑर्डर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स. नंबर ऑफ ऑर्डर्स कत হবে? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना नंबर देना होगा? ए बाई ईओ क्यू, ए बाई ईओ क्यू. तो 25 ऑर्डर्स करना हमको, मेरे को कितना ऑर्डर करना होगा? 25. तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 365 बाई 25 इंटू 4 = 14. सर 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 अब 12 मंथ्स क्यों नहीं लिए? 12 डिवाइड बाई 25 कैसे करेंगे? नॉट पॉसिबल ना. 12 डिवाइड बाई 25 नॉट पॉसिबल ना. दैट्स वाई क्या हो जाएगा? 365 डिवाइड बाई 25 होने वाला. क्लियर? ओके डिया, क्लियर. 365 डिवाइड बाई 25. तो फ्रीक्वेंसी कितना होने वाला है? 14 डेज. फ्रीक्वेंसी फिर कितना होने वाला है? 14 डेज. इतना तक समझ में आ गया? तो यहाँ से तुम लोग तो आराम से ये वाला पार्ट कर सकते हो, योक्यू वाला पार्ट. जल्दी से ये क्वेश्चन देख के योक्यू वाला पार्ट करो और फ्रीक्वेंसी निकालो, तो नंबर 1 वाला कंप्लीट हो जाएगा मेरा. जल्दी से एक बार. ओके, नेक्स्ट वन, द रीऑर्डर पॉइंट. तो रीऑर्डर पॉइंटेर फॉर्मूला কি হচ্ছে? রিঅর্ডার পয়েন্ট और রিঅর্ডার लेवल वो तो सेम. রিঅর্ডার लेवल फॉर्मूला কি হচ্ছে? सर একটু आगे अभी देखते, ऐसे कुछ टाइम पहले हम देखे मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, कुछ ऐसा ही था ना सर. रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम यूसेज प्लस मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, ऐसे ही था ना सर. सर यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक की फिर प्लस हो जा रहे हैं. और एक फॉर्मूला था बेटा, यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक भी दिया हुआ था, तो वो भी प्लस हो जाएगा. तो कैसे होगा अच्छे से एक बार देखो. तो सेफ्टी स्टॉक जब रहेगा तो सेफ्टी स्टॉक को हम लोग को प्लस करना होगा. ओके, ओके, सेफ्टी स्टॉक जब रहेगा सेफ्टी स्टॉक को हम लोग को प्लस करना होगा. डन. सेफ्टी स्टॉक को हम लोग को प्लस करना होगा. अब मैक्सिमम यूसेज कितना है? मैक्सिमम यूसेज कितना है हम लोगों के हिसाब से? मैक्सिमम यूसेज तुम्हारा पर मंथ के हिसाब से कितना है? 6250. ये सुनो, ठीक है, 6250 फॉर पर मंथ. मतलब पर मंथ मतलब कितना दिन हो जाता है? 30 डेज. तो 6250 फॉर 30 डेज. एंड मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना है? देख लो जल्दी से. इट टेक्स 45 डेज टू
टेक डिलीवरी, तो 45 डेज लगता है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे अच्छे से देखोगे, मैक्सिमम यूसेज 6250 इन अ मंथ, तो डिवाइड बाय 30 डेज, तो 45 डेज के लिए कितना होने वाला है, ओके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा 12,625 आने वाला है, ओके। और नेक्स्ट वाला क्या बोले, अगर वो 4.50 हो जाता है तो हम लोग को क्या होगा, मतलब ये वाला जो तुम्हारा 1.50 था, अगर वही 4.5 हो जाएगा तो चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज होने वाला है बस। क्लियर, ये वाला चीज समझ में आ गया। ये वाला थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ठीक है, ये वाला पोर्शन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। नेक्स्ट वाला क्या बोला है, देखो लास्ट वाला बोल रहा है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी इफ वैल्यूज 4.50 इंस्टेड ऑफ 1.50, तो 4.50 इंटू 20% करना होगा, बस वही चेंज होने वाला है, खाली सी चेंज होने वाला है, बाकी सब कुछ सेम। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट दिन फिर से हम लोग बाकी सम्स करने वाले हैं।